Good evening, everyone. We are back with another very interesting episode of HCH Educational Series. And आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर. मैं किसी से बात कर रहा था क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, तो उसने मुझे बोला कि ये हार्ट फेलियर तो हमने सुना है कि चलते चलते हार्ट बंद हो जाता है. तो मैंने कहा भाई वो हार्ट अटैक होता है, वो भी हार्ट फेलियर नहीं होता है. उसने कहा नहीं, पर हार्ट अटैक तो सुना है, पर हमने कभी भी लंग अटैक सुना ही नहीं. ना लंग फेलियर सुना, ना लंग अटैक. पर मैं लगा कि ये टर्म जो हम मेडिकल पीपल या डॉक्टर्स इतनी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, राइट, लोगों को शायद इसका मतलब भी नहीं पता. दमे की बात करते हैं, अस्थमा की बात करते हैं, स्मोकिंग इंड्यूस की बात करते हैं, राइट, सांस फूलने की बात करते हैं, फेफड़ों में फेफड़े कमजोर हो गए हैं, बट क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर को नहीं समझ पाए. पर इसलिए आज हमारे डॉक्टर कर्नल राय सर from the financial capital of the country, Mumbai, from the famous KDH hospital. And it's a privilege to introduce you, sir. Sir has more than 5 years of experience, is an alumnus of SN Medical College, Agra, and then the most prestigious Armed Forces Medical College, Pune. He has worked in the most Apex Institute, which is Research and Referral Center, Delhi, as a pulmonologist, and also in one of the most finest cardiothoracic departments of the country in Pune, which is Cardiothoracic Center, CTC Pune. He has to his member of the National College of Chest Physicians, Indian Association of Bronchology, and and API, Indian Society of Critical Care Medicine. But he has more than 61 publications to his credit, which is really credible. His areas of interest are interventional pulmonology and sleep medicine. I welcome Dr. Rai sir. Thank you, Gaurav. Thanks for the nice introduction. I was thinking on the same lines because their awareness about that chronic respiratory failure is not there. There are various type of failures, like everyone has heard of the chronic kidney disease, kidney failure, liver failure, heart failure, but lung failure, the terminology is little uncommon. And basically, like with the other organs failure, here also, if that organ is not functioning what it is supposed to function, then it goes into the failure. Like what is the main function of the respiratory system is basically into the gas exchange, the oxygenation and ventilation, that is the elimination of the carbon dioxide. So basically the main functions of the lung is the gas exchange. We breathe in oxygen that goes into the blood, which is supplied to the all part of the body. Each cell and each tissue, they utilize oxygen for their metabolism. And the byproduct of that metabolism, the carbon dioxide through the circulation, it comes back to the air sacs what we breathe out. So broadly, like we breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. That is the main function of the lungs. Despite there are other functions also, but the gas exchange, that is the main function. And when the this system, respiratory system, it is not able to either the wash out the carbon dioxide or breathe in the oxygen what is required to keep the oxygen levels into the blood, the oxygen level starts dropping, and that is called as the respiratory failure. These days, because the COVID had taught us so many things, like everyone is aware of the oxygenation, at least the everyone knows how to monitor the oxygen, what are the dangers level below which they should seek medical attention and go for the treatment. But that is in the acute setting, like COVID strikes little, like we will say acutely. The person develop the severe pneumonias, the oxygen level starts falling in some patients, those who are moderate or severe cases, and some they develop the ventilatory failure also, in which the CO2 level starts rise. There they require the ventilatory support also.
So broadly, there are two things. One is oxygenation and the other is the elimination of the carbon dioxide. That is called as ventilation. Oxygenation, when we see that when the oxygen level starts dropping, like everyone is aware of the pulse oximetry. When the saturations, SpO2, what is monitored, that goes below 90-92%, that is called as respiratory failure. That is hypoxemic type, means ऑक्सीजन का फेलियर है, वो उसमें ऑक्सीजनेशन कम होता है. So in those subsets they require the support with the oxygen in addition to treatment of the underlying condition. सेकेंडली जो दूसरी टाइप का फेलियर होता है जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स फटीक हो जाती हैं ब्रेथलेसनेस की वजह से या मसल्स की वीकनेस की वजह से या सेंट्रल जैसे न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन होता है या सीओपीडी वगैरह केसेस में जो वेंटिलेशन जैसे ब्रीदिंग आउट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिफेक्टिव होता है. तो नॉर्मली डेफिनेशन पर्पजेस के लिए जो हम लोग ब्लड से आर्टीरियल ब्लड गैस, एक नीडल से आर्टीरियल ब्लड गैस लेते हैं, वो आर्टीरियल ब्लड गैस में ऑक्सीजन का लेवल यदि लेस देन 60 हो, नॉर्मली 90-100 के बीच में होना चाहिए, बट व्हेन इट इज लेस देन 60 उसके जो करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन होता है लेस देन 90%, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी फेलियर. दैट इज मेनली द ऑक्सीजनेशन. तो व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेशन फेलियर, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर वी कॉल इट. उसके साथ में ऑक्सीजनेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कई केसेस में नॉर्मल रहे या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑक्सीजनेशन फेलियर. दूसरा होता है जिसमें जो CO2 को एलिमिनेशन का प्रोसेस डिफेक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज वेंटिलेशन, तो वो उसको टाइप 2 फेलियर बोलते हैं. तो उसमें जो आर्टीरियल ब्लड लिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल यदि 50 से ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. दोनों में डिफरेंशिएशन थोड़ा जरूरी होता है बिकॉज दोनों का अप्रोच जो ट्रीटमेंट का डिफरेंट होता है. तो बेसिकली टाइप 1 दैट ऑक्सीजनेशन फेलियर, टाइप 2 ये वेंटिलेटरी फेलियर. जी सर, तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया सर. अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो टाइप 1 फेलियर, और अगर ब्लड से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पा रहे हैं तो टाइप 2 फेलियर. लेकिन सर जो पेशेंट्स, कौन सी बीमारियों में पेशेंट्स को, आपने बताया कि या तो मसल वीकनेस हो जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, लेकिन कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें में हो सकता है, नंबर 1. और नंबर 2, जो पेशेंट घर पे है जो भी डॉक्टर तक पहुंचा नहीं है, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिसपे उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं मुझे अब डॉक्टर जाना है ताकि सिचुएशन और खराब ना हो. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हम सांस लेते हैं वो एयरवे से होते हुए एयर सैक्स में जाती हैं, जो एयर सैक्स जाती हैं वहाँ पे वो ब्लड के मींस कांटेक्ट में आती हैं, और जो हम जो ब्रीद इन एयर करते हैं उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, 19 to 20% ऑक्सीजन होती है. वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में जाती है, तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो एयर सैक्स में होती है उनके थ्रू जाती हैं, और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और वो पूरे शरीर को सप्लाई करता है. तो ऑक्सीजनेशन फेलियर कहाँ होगा, या तो जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं एयर, तो एटमॉस्फेयर में यदि ऑक्सीजन कम हो, रेयरली जैसे हम तो डिफेंस में थे, आप भी डिफेंस में रह चुके हैं, तो मेनली जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है तो वहाँ पे जैसे इनटेक ऑक्सीजन का कम जाएगा, तो उसमें थोड़ा यदि लंग में प्रॉब्लम्स आए तो जल्दी पिकअप हो जाएगा कि ऑक्सीजनेशन फेलियर. तो यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जो सांस लेने में, या जो सांस ले रहे हैं तो सांस की नली जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री होता है उसमें कहीं रुकावट हो, जैसे ये यहाँ पे जहाँ से सांस लेते हैं लैरिंक्स बोलते हैं, उसमें यदि स्वेलिंग हो, सांस की नली में कोई ट्यूमर हो, ग्रोथ हो, या सांस की नली सिकुड़ी हुई हो, जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा वगैरह में सिकुड़ी हुई रहती हैं, तो यहाँ से मतलब
हवा हवा यदि कम जाती है, यदि एयर सैक्स। दूसरा, यदि एयर सैक्स किसी चीज से फिल्ड अप हो, मतलब हवा उसमें जाती नहीं है एयर सैक्स में, जैसे निमोनिया में वो कफ जमा रहता है उसमें, बलगम जिसको बोलते हैं, एक्सुडेट। दूसरा, यदि फ्लूइड हो, जैसे पल्मोनरी एडीमा होता है जो कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, जिसको कार्डियोजेनिक बोलते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है जिसको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं। तो जैसे पल्मोनरी एडीमा हो गए, निमोनिया हो गए, तो इस तरह की चीजों में हवा वहां तक नहीं पहुंचती है, तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब वो ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि उसका लेवल जो होता है ब्लड में 60 से नीचे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। उसमें सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़ती है? जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो हम मेजर करते हैं 90 से नीचे आ जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 60 से नीचे हो जाए, तब ऑक्सीजन का सपोर्ट रहता है, उसको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। इसके अलावा जैसे होता है ना कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, तो उसमें भी मोर और लेस सिमिलर प्रोसेसेस हैं। बट जैसे किसी वजह से यदि डिप्रेशन हो सेंट्रल नर्वस में, मतलब ब्रेन यदि डिप्रेस्ड हो, खासतौर से किसी ने जैसे सिडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स जैसे स्लीपिंग पिल्स या कुछ ज़्यादा खा लिया, तो ब्रेन डिप्रेस हो जाता है, तो उससे ब्रीदिंग जो ब्रेन से कंट्रोल होता है वो डिप्रेस होता है। उसके अलावा जैसे मसल्स की कोई वीकनेस हो, या थोरेसिक जो केस है ये, जैसे ये स्कोलियोसिस हो जाए, या मसल्स की जो थोरेसिक मसल्स की वीकनेस हो, डायफ्राम जो पार्टीशन होता है उसकी वीकनेस हो, तो वेंटिलेशन कम होता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लगता है, और उसको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। उसके अलावा जो कॉमन चीजें होती हैं, अधिकतर जो सीओपीडी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसाइटिस, दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज। उसके अलावा जैसे मेनली जैसे कुछ जो बीमारियां जिसमें मसल्स नर्व्स वगैरह वीक होती हैं, जैसे गुलिन बारे हैं, न्यूरोपैथी हैं, जो मसल्स, कुछ लोगों में मसल्स वाले डिसऑर्डर होती हैं, उन केसेस में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। राइट सर। तो ये तो सर समझ गए कि यहाँ तो देर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, यहाँ कोई ऐसी कमजोरी है, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे मसल की हो, चाहे नर्व की हो, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है, राइट। या और आपने बताया कि ये ज्यादातर जो लंबे लंग के डिसऑर्डर्स हैं, लंग की जो लंबी बीमारियां हैं, चाहे वो दमा हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो एम्फाइसीमा हो, उनमें ज्यादातर होता है। या बट व्हाट इज द स्टेज, जैसे आपने बोला कि एक तो ब्लड टेस्ट हम करते हैं जिससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल क्या है, दूसरा हम सैचुरेशन चेक करते हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स भी हैं सर जिससे कि डॉक्टर को या पेशेंट को ये पता चल सके कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, और भी कोई ऐसे टेस्ट हैं जो कि करने जरूरी होते हैं टू क्लासिफाई दैट द पेशेंट इज गोइंग इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर? हाँ, एक तो है जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, और दूसरा है कि वेरियस जो कॉजेज हमने बताया है तो क्यों हो रहा है। तो ये दोनों चीजों का पता लगाना है, डायग्नोसिस वो जरूरी हो। रेस्पिरेटरी फेलियर उसको कहने के लिए, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लग गई या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लगे, तो उसको रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। उसमें जैसे जब भी तकलीफ होगी तो उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा इनवेरिएबली 25, या कि नॉर्मली ये 15-16 पर मिनट के हिसाब से होता है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट, वो बढ़ जाएगा। यदि 25-30 से ऊपर हो तो दैट इज वन इंडिकेटर कि पॉसिबली इट इज गोइंग फॉर द रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके अलावा पल्स बढ़ जाती हैं, जो थोड़ा सा सेंसोरियम डल होने लगता है, क्लाउडी हो जाता है, जो यहाँ पे जैसे सांस लेने की मसल्स होती हैं, जैसे ये यहाँ पे होती हैं नसल, आप दूर से देख के कहें कि ये बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, ज़्यादा काम करने लगती हैं, फटीक हो जाता है उसको। और जो CO2 वाले होते हैं उनमें जैसे पैरों में सूजन आ सकती है,
ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये नीले पड़ जाती हैं उंगलियां वगैरह की, उनकी जो फिंगर टिप्स होती हैं जिसको साइनोसिस बोलते हैं। तो दीज आर दी सम ऑफ दी जो जिसको बोलते हैं कि साइंस सिम्टम्स, जिससे पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा राइट। एंड सर, ये वाला पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है इन सारे सिम्टम्स को देख के कि मेरी सांस बहुत ज्यादा तेज चल रही है, या मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, या मेरे नाखून नीले हो गए, राइट, और यहाँ सेंसोरियम की बेहोशी छा रही है, राइट, ये सारी चीजों को देख के जो पेशेंट आएगा, क्या वो सीधा आईसीयू में जाएगा या कुछ और होगा? और अगर आईसीयू में जाएगा तो इसका इलाज क्या है और कितना सक्सेसफुल है इसका इलाज? है। और ये डिपेंड करता है कि इसको मीन्स किस वजह से है ये रेस्पिरेटरी फेलियर, और कितना, जैसे दो तरीके का होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। जैसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, जो क्रॉनिक मतलब कोई भी चीज लॉन्ग स्टैंडिंग हो। एक होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, उसमें जैसे सडनली जैसे ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉट आया तो सडनली पेशेंट ब्रेथलेस हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा उसकी, मीन्स उसको जो साइनोसिस वगैरह आ सकता है, डिपेंड करता है मतलब कितना सीवियर है। ऐसे सडनली जैसे कोविड सीवियर कोविड निमोनिया हुआ या सीवियर निमोनिया हुआ, एआरडीएस में चला गया, पल्मोनी में चला गया, तो उसको मीन्स से विद इन आवर्स उसको रेस्पिरेटरी फेलियर्स के सिम्टम्स हो जाएंगे, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, सांस की गति बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन उसका फॉल होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ सकता है। तो ये बताते हैं उसको कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है। दूसरा, जैसे इस तरीके के मरीज यूजुअली इमरजेंसी में आते हैं, फिर उनको एडमिट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन किस वजह से, कितनी सीवियरिटी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसको वार्ड में मेंटेन कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी में आईसीयू में जाने की जरूरत है। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है उसकी, तो सीवियरिटी के ऊपर यही चीज, जैसे वो मीन्स कुछ दिनों आपने इलाज दे दिया, जैसे कोविड का ट्रीटमेंट हो गया, सीवर निमोनिया था उसके बाद नहीं ठीक हुआ, या कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या और कोई प्रॉब्लम की वजह से उसका जैसे ऑक्सीजन फॉल हुआ या CO2 ज्यादा है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपने इलाज कर लिया है 15 दिन, महीना, उसके बाद भी उसकी ऑक्सीजन लेवल कम रहती है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, या जिसका CO2 ज्यादा है, उसके लिए आप किसी तरीके की वेंटिलेशन, चाहे मास्क वेंटिलेशन या और कुछ देते हैं, तो उसको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। तो एक्यूट वर्ड होता है जब वो इट डेवलप्स विद इन आवर्स टू विद इन आवर्स यू कैन से, एंड क्रॉनिक होता है तो इट टेक्स सेवरल डेज टू डेवलप दैट रेस्पिरेटरी फेलियर। बाकी उसका जैसे अप्रोच ट्रीटमेंट वगैरह वो डिपेंड करता है, वन इज द कॉज क्यों हुआ है वो, और दूसरा उसकी सीवियरिटी कितनी है। जैसे कोई 1 लीटर ऑक्सीजन पे भी मेंटेन कर रहा है, कोई 15 लीटर ऑक्सीजन लग रहा है, किसी का 15 लीटर में भी नहीं मेंटेन हो रहा है, किसी को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो आईसीयू में जाएगा यदि उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इनिशियल हुआ है, प्लस उसकी कोमॉर्बिडिटीज रीजन्स और बाकी क्या क्या प्रॉब्लम, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो आईसीयू में जाएगा या वार्ड में जाएगा या हाई डिपेंडेंस यूनिट में जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट सर। तो पर इसका इसका सर्वाइवल रेट क्या है सर? अगर जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट आते हैं, चाहे वो रूम एयर पे रहें, चाहे वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे रहें, चाहे वो बाईपैप रहें, या इनका रिकवरी रेट क्या है? और हाउ व्हाट आर द important tips to live with chronic respiratory failure? Because ये पेशेंट हॉस्टल में आएंगे फिर बाहर जाएंगे, so what are the challenges they face and what are the tips to have a healthy life living with respiratory failure? ये पहले तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट्स अधिकतर कॉमनली जो आते हैं, तो वो एक सीओपीडी होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो सीवियर हो जाता है, एक्सेसरबेशन होते हैं। दूसरा लंग फाइब्रोसिस वाले पेशेंट, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD बोलते हैं, जो एक तरह का थोड़ा प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, कई वजह से होता है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सीओपीडी ग्रुप, ये काफी कॉमन है। उसके अलावा कोई किसी को जैसे
एडवांस स्कोलियोसिस हो, सीवियर हो, तो जिसमें वो स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, स्कोलियोसिस हो, या पोलियो वाले के हैं, या और किसी वजह से मीन्स उनको जो पैरालिसिस टाइप का हो जिसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है, तो ये केसेस क्रॉनिक होते हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है उनकी। सो इसमें बेसिकली मीन्स वही देखना है कि फेलियर खाली ऑक्सीजनेशन का है जिसमें खाली ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, या वेंटिलेशन का है जिसमें ऑक्सीजन लेवल खाली कम हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन को सपोर्ट देते हैं। किसी का भी जैसे ऑक्सीजन कम होता है जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले जैसे मरीज ये पूछता है कि कितनी देर लगाना है, डॉक्टर साहब 3 बार लगा लें, 10 मिनट सुबह दोपहर शाम, या कोई बोले हम तो साहब 15 मिनट रोज लगाते हैं। लेकिन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको ऑक्सीजन इनवेरिएबली जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, पहला प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ऑक्सीजन एज दवाई देने के लिए वो 15-16 घंटे पर डे एट लो रेट, मतलब उतने रेट पे जिसमें 90% से ऊपर सैचुरेशन रहे, उतने से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन इज लाइक ए ड्रग। उसको दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रेट पे देना है, कितना रखते हैं साहब, 5 पे दें, 10 पे दें, 2 पे दें, कितना रेट पे रखना है? तो फिक्स नहीं रहता है, उतने रेट पे देना है ताकि सैचुरेशन 90% से ऊपर रहे। सो जिसकी रिक्वायरमेंट 5 लीटर तक की होती है, 5 लीटर से कम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4-5 लीटर, वो रिक्वायरमेंट वाले नॉर्मल वार्ड में रख सकते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। वो घर पे ऑक्सीजन से मैनेज हो सकते हैं, होम ऑक्सीजन थेरेपी से। उनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोवाइडेड क्रॉनिक जिसका हम लोगों ने पता लगा लिया क्यों है, उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसमें डाला हुआ है, ठीक है। उसके साथ में उनको जैसे लो फ्लो ऑक्सीजन पे जिससे उनका सैचुरेशन मेंटेन रहे वो उस पे देते हैं। राइट। दूसरा दूसरा थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे मरीज घर में ऑक्सीजन पे हैं। तो पहली चीज, ऑक्सीजन कितना देना है, मिनिमल फ्लो जितने पे ऑक्सीजन उनका सैचुरेशन 90% से ऊपर है। दूसरी चीज, उनको एक्टिविटी अपनी कम नहीं करनी है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी को कम नहीं करना है। वो एक्टिविटी उनको जब भी जैसे एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो उस समय थोड़ा ऑक्सीजन को बढ़ा देना है, 1-2 लीटर बढ़ा सकते हैं। ऐसे इनवेरिएबली सोते समय थोड़ा सा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से आधे से 1 लीटर तक ज्यादा होती है। जैसे 3 लीटर पे बैठे बैठे मेंटेन करते हैं, थोड़ा वॉक किया तो उनको 4 लीटर पे रख दीजिए, वॉक करते समय। सोते समय आप उनको 4 लीटर पे रख दीजिए। तो ये प्रैक्टिकल टिप ऑक्सीजनेशन के लिए। राइट। एंड सर, इसी तरह से ऑक्सीजनेशन के बाद एक एक सब ग्रुप होगा जो बाईपैप पे भी रहता होगा, सीपैप या पे भी रहता होगा। थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएंगे सर, हाउ इट इज लिविंग विद सच बिग डिवाइसेस एट होम। ठीक है। दूसरे जो होती है ना जिसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलेशन। वेंटिलेशन नॉर्मली जैसे वो ट्यूब डाल करके प्रॉपर एक बड़ा सा वेंटिलेटर होता है, तो उससे शॉर्ट ऑफ दैट इसको बोलते हैं मास्क वेंटिलेशन, जिसमें मास्क को यहाँ पे मास्क लगाते हैं इधर की तरफ, और उससे हम लोग पॉजिटिव प्रेशर पे एयर दी जाती है एज वेंटिलेशन। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो प्रॉपर वेंटिलेशन इन्वेजिव होता है उसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब यहाँ गले से डाली जाती है, ठीक है, वो कनेक्ट होती है वेंटिलेटर से। इसमें एक मास्क रहता है जो ऑक्सीजन मास्क से थोड़ा सा थिक रहता है, नाक और मुंह को कवर करते हुए लगाते हैं। और उसमें जैसे 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सीपैप जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो उसमें एक ही प्रेशर सेट कर देते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर का प्रेशर किया तो थ्रू आउट वो जो होता है ना 5 सेंटीमीटर प्रेशर पे हवा देगा। तो जब फोर्सफुली हवा जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में मदद करती है।
दूसरी जो एयर सैक्स जो कोलैप्स हो जाती हैं उनको ओपन अप करने में मदद करती है। तो उसको बोलते हैं एक CPAP, मतलब इंस्पिरेशन ब्रीदिंग इन और एक्सपिरेशन ब्रीदिंग आउट, दोनों में प्रेशर सेम रहते हैं। ये अधिकतर पल्मोनरी इडीमा टाइप की जो डिजीजेस होती है उसमें दी जाती हैं। कई सारे लोग जैसे तो स्लीप एपनिया वाले होते हैं उनको CPAP दिया जाता है। एक दूसरी मशीन होती है बाईपैप बोलते हैं। मशीन देखने में वैसी ही रहती है लेकिन उसमें ब्रीदिंग इन में प्रेशर्स ज़्यादा दिया जाता है और ब्रीदिंग आउट में प्रेशर्स कम दे सकते हैं ताकि वो मोर फिजियोलॉजिकल रहे। तो वेंटिलेशन पर्पजेज के लिए नॉर्मली बाईपैप देते हैं। तो इसमें ये जो देते हैं वो मास्क से देते हैं, इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाला जाता है। तो ट्यूब डालने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कुछ ट्रॉमा बैरोट्रॉमा वगैरह रहता है, इन्फेक्शंस होती हैं ट्रेकियल ट्यूब वगैरह से, प्लस उसको निकालेंगे जब ठीक हो जाएगा तब निकालेंगे, बीच में निकाल नहीं सकते हैं। इसमें मास्क को लगाया उसको डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट आप उसको इंटरमिटेंट कर सकते हैं, जैसे 2 घंटे लगाया नहीं लगाया, ओवरनाइट लगा दिया, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। उसमें भी जैसे प्रेशर एडजस्टमेंट होती है कि डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कैसा रिस्पॉन्स है, जैसे ब्रीदिंग इन के प्रेशर सेट किए जाते हैं, ब्रीदिंग आउट के प्रेशर सेट किए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड दी बाईपैप वेंटिलेशन। नॉर्मली जो टाइप 2 वाले होते हैं जिसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है उन केसेस में बाईपैप या CPAP यूज किया जाता है। राइट। एंड सर, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अब ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और क्वालिटी ड्रिवन तरीके से HCH आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग्स में करता है, जहां पे सिंपल चीजें हैं कि इन मशीनों की अपकीप कैसे करनी है, इनको यूज कैसे करना है, मास्क की फिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम डॉक्टर अनिमेश आर्या जो कि दिल्ली से थे, उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी कि ऑक्सीजन को लोग, छोटी छोटी चीजों को अगर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैसे ऑक्सीजन की इफेक्टिविटी ही कम हो जाएगी, चाहे आप कितना भी हाई वैल्यू लगा लो, राइट। सो with organized out of hospital care, beyond the hospital care players, I think the management of these patients is happening better, और घर पे आपको infections भी नहीं होते हैं जो कि हॉस्पिटल में होने के बहुत चांस है। सर, what role do you see for pulmonary rehabilitation, chest physiotherapy in all these patients? देखिए, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ये बेसिकली जैसे है टेक्नोलॉजिकल टर्म की रिहैबिलिटेशन करना है किसी चीज को, जैसे कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें। खास तौर से मेन चीज रहती है कि जैसे जो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, तो जो भी डिजीज है वो तो इनिशियल जब एडमिशन होता है, इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है, डॉक्टर्स हम लोग असेस करते हैं कि क्यों हुआ ये, एंड वी ट्रीट दैट क्यों। तो ट्रीटमेंट ऑफ द बेसिक डिजीज विच हैज कॉज दैट प्रॉब्लम। दूसरा, उसके साथ में जो सपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें जैसे ऑक्सीजन जरूरत है ऑक्सीजन दिया, बाईपैप जरूरत है बाईपैप दिया है। इसके अलावा जैसे उनको जब भी लॉन्ग टर्म ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी फेलियर की, तो उसको धीरे धीरे उनकी मसल्स वीक हो जाती है, जनरल बाकी बॉडी की मसल्स वीक हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती हैं, फटीग डेवलप हो जाता है, न्यूट्रिशन उनका डाउन हो जाता है, थोड़ा दे फील लिटिल लाइक कि अभी ऑक्सीजन के बिना कैसे बाहर जाएं, बाहर जा नहीं पाते हैं, वेंटिलेशन लगाने की प्रॉब्लम है, तो सोशलाइजेशन कट डाउन हो जाता है, फ्रेंड सर्कल्स निकल जाते हैं, तो सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज ये सारी चीजें आती हैं। तो ओवरऑल जैसे आपको देखना है कि हाउ यू कैन ब्रिंग हिम टू द बेस्ट शेप, जैसे उसको एक्सरसाइजेस करा करके, उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव करा करके, ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन करके, उसके अलावा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे करके, उसके फ्रेंड्स सर्कल, उसकी फैमिली की और क्या रिक्वायरमेंट है, टेकिंग इनटू अकाउंट दोज इश्यूज, उनको ये प्रोसेस्ड वे में, जैसे कैसे उनको, जैसे एक्सरसाइज से आपने, जैसे कोई आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई कहीं पे या फ्रैक्चर हो गया, तो धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन से यू कम बैक टू द नॉर्मल लेवल्स।
So that is the process of rehabilitation. It is very, very, very important. It plays a very important role in the well-being of the patient, the final outcome of the patient, and it is very important. One of the, I will say, integral aspects in chronic respiratory failure. What is called as pulmonary rehabilitation. Almost most hospitals, they have come out with the structural program. Like in our hospital we are having 6 week that rehabilitation program. Similarly various people are doing, and the same thing, like you people, like in the home care, you are doing same thing at home. So the assistance of the physiotherapist, nutritionist, the taking care, the all those things, they play very important role in the well-being of the patient. Thank you so much, sir. I think we can't stress less the need of a multidisciplinary team which is supporting the doctor to get the patient to recovery, whether it has a physiotherapist or a respiratory therapist or a psychologist or a nutritionist. I think all these people become very, very important, and they all need to coordinate and work together in a tech-enabled platform so that the doctor is still updated about the patient of whatever is happening, and hence the doctor can guide the team reach to the adequate goals which we want to. Sir, are there any special equipments which are used for pulmonary rehabilitation in the hospital which cannot be used at home, or all these things can be done at home also? Most of these things they can be done at home. Basically, like during rehabilitation, you assess the patient's need. It has to be individualized. Each patient need little different, and how you are going to means do exercise them to improve nutrition and other well-beings. So, like someone who is on oxygen, how to do the exercises. Okay, so how to improve their lung capacity, so that means in borderline case their oxygen requirement goes down. Some of them they can be off oxygen also, those whose requirement is low. So you have to individualize. So one is like those where like they are requiring the oxygen and the mask ventilation. Mask ventilation is simple because it has to be used intermittently. You are not giving it continuously, that mask ventilation. You are giving say for 6 hours, 8 hours, 10 hours a day. So that is intermittent. So the person can exercise, do means the other things also, but here they require oxygen. Okay. In my clinic, I have kept a photograph of a person participating in means marathon race in the Mumbai Marathon, participating in Mumbai Marathon on oxygen. So there are portable oxygen concentrators, small volume on oxygen concentrators are there. So one can do matlab all job, all activities, but on oxygen. Provided most of these patients they require 1 liter, 2 liter, 3 liter, not more than 5 liter. Where the requirement is high, then we have to see means there are other things also which we need to look into and take the aspect. But what is required is the oxygen source. Preferable source is oxygen concentrator. Portable oxygen concentrators, they are little costly, but they tremendously improve the quality of life if the oxygen requirement is there, like those who are on long-term oxygen. So it improves the quality of life. Like you can socialize, yeah, normal. You can be a normal person. In certain movies also, or some people they come on the like TVs also. You will not be able to recognize, like they are putting on the along the frame, this frame along this the oxygen tubing comes like this, and just little bit of this thing, you will not be able to make out that they are on oxygen, they are doing all type of activities. So that should not be the limitation. Second thing is ki how much oxygen to give, that is very important. 1 liter, 2 liter. So best is that pulse oximeter for most of the decision making. Oxygen you can take the decision based on that pulse oximeter. Keep the saturations above 90%. If those who are type 2 means their CO2 level goes up, those who are on BiPAP,
in those you need to give low oxygen. It should not cross 95%. Means roughly 90-94% in between, try to keep that oxygen. So at what rate? 1 liter, 2 liter, 3 liter, with which it remains between the 90 to 94%. That much of oxygen should be given. Because in those subset, if you give more oxygen, so they will start retaining the carbon dioxide, and they will deteriorate. So one is pulse oximeter, second source of oxygen, thirdly, like summer is on tubing. So means like if that oxygen concentrator is fixed, your cylinder is fixed. So in that cases, like the treadmill sort of thing, but the bicycle, that is static bicycle sort of thing, and the other like limb exercises. So all those things they can be improvised at home, and they can do all type of that exercises. Very, very encouraging, sir, because I think quality of life and independence is what every human being yearns for. And just to again update all the viewers that at HCH, we provide these small aluminum filters also, which are refillable, which are very light to carry. And as sir said, the oxygen should not limit your capacity to perform the way you want to perform, right? So, sir, very comprehensive account. We have already touched more than 1100 people. We have had more than 120 shares of this video, and at any given point of time we had 50 people live. I think it was a very, very interesting and engrossing thing on a subject which people don't understand. सांस फूलता है समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि chronic respiratory failure का है. My last question to you for this series is, sir, that COVID and long COVID, right? How the long COVID is also getting people into a similar type of respiratory disabilities, and what should people do in that? कोविड के केसेस में खास तौर से जिनको सीवियर कोविड होता है, जैसे जिसमें सीटी स्कोर बहुत ज्यादा रहता है, 20/25, 15, 25/25, मतलब सीवियर कोविड में, तो नॉर्मली कोविड में लंग में जैसे जो एक्सुडेट्स होते हैं यूजुअली वो ठीक हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं. बट कुछ लोगों में जो कोविड, ये मतलब सारी चीजें नहीं रिजॉल्व हो पाती, उनमें कुछ रेजिडुअल डिफेक्ट्स रह जाते हैं. जैसे लंग की कैपेसिटी वीक हो जाती है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे जिसका जैसे से 1 आध महीने, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते हो गए, फिर भी उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है. लंग में कुछ स्कारिंग हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है. उसके साथ में जैसे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे जो लंग को सप्लाई करती है नस, उसमें क्लॉटिंग आती है, ब्लॉकेज आती है, तो वो प्रॉब्लम को उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम रहता है. तो वो है. या फिर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे जिसमें एयर आ गया है लंग्स में, जैसे नीमोथोरेक्स बोलते हैं, नीमोमेडिसिन बोलते हैं. या फिर जैसे एडेड इन्फेक्शन, निमोनिया हुआ, ठीक हुआ, फिर निमोनिया हो गया, ठीक हुआ, लेकिन वो सब चीज़ों से स्कार हो जाता है. तो लंग्स वीक हो जाते हैं. वीक होने की वजह से यूजुअली इन केसेस में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजनेशन फेलियर होता है. तो जैसे ऑक्सीजन बाकी उनमें देते हैं, इनमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. प्लस ये देखा ये गया है कि मीन्स धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 3-4 मंथ्स में, उसमें काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व करती हैं, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, व्हाट वी हैव सीन, except barring some exceptions to that, those who remain on oxygen for very long time. ये जैसे जो कोविड वाले हैं, जो कोविड निमोनिया के सीवियर केसेस, जिनको हाई ऑक्सीजन लगा हो, वेंटिलेशन लगा हुआ हो, लंबे समय तक रहता है, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. नॉर्मली मोस्ट केसेस में हम लोगों ने जैसे इनके लंग की कैपेसिटी, लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो किए हैं, और ये देखे हैं कि वो ग्रेजुअली ओवर 3 मंथ्स पीरियड most of the people they recover, at least like हमने देखा है कि 6 weeks और 3 months के बीच में roughly 10% उनकी कैपेसिटी improve होती है, next 3 months में और improve करती है. And some people they require oxygen usually for 6 to 1 year, but mostly they will be off oxygen, at least in the COVID में भी वही देखना है कि मीन्स लंग में जैसे ऑक्सीजनेशन क्यों कम है,
इज इट बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस की वजह से कम है, एयर सैक्स का है, या कुछ और पहले उनमें कुछ डिजीज थी उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, कुछ और कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वी ट्रीट दोज थिंग। बट जनरल प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होगा, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन चाहिए होगा, इन एडिशन टू ये जैसे प्रॉपर जो कॉज का जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका ट्रीटमेंट, और उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ द रिहैबिलिटेशन, द पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो बोलते हैं, वो मोर और लेस सिमिलर रहता है। Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you for such words of wisdom and in such a simple language. I think हमारे एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि इनके जो रेस्पिरेटरी फेलियर क्रॉनिक वाले लॉन्ग स्टैंडिंग रहते हैं, इनके लंग्स वीक रहते हैं, तो उसमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो वीक लंग्स हैं, तो दे आर मोर प्रॉन फॉर द चेस्ट इन्फेक्शन। बाकी होते हैं जैसे बाकी वायरल और निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, तो दे इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, जैसे जिनको थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ तो ऑलरेडी वो उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो थोड़ा भी ऑक्सीजन हुआ, जैसे सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन परिवार में सबको हुआ है, तो सब ठीक हो जाएंगे। हो सकता है सबको किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको हो सकता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो हॉस्पिटल। तो सारे एफर्ट्स ये करने हैं कि मीन्स कोई एडेड इन्फेक्शन न हो, तो उससे बचाव के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन होती हैं, जैसे कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन है, वो सभी अवेयर हैं। उसी तरीके से बाकी वायरसेस होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की H1N1 इक्वली डेंजरस। तो और कई सारी वायरल डिजीज होती हैं, तो वायरल जो निमोनिया का फ्लू शॉट होता है, एनुअल होता है, वो लगवाना चाहिए। उसके अलावा कोई बैक्टीरियल निमोनिया ना हो, वो वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दिस एडेड इन्फेक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। बैंग ऑन सर, बिल्कुल सही। निमोकोकल वैक्सीन हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं, एल्डरली में सुनते आए हैं, लंग डिसऑर्डर्स में सुनते आए हैं। कोविड वैक्सीनेशन इटसेल्फ हैज बिकम अ रियलिटी एंड अगेन आई वुड अर्ज ऑल माय व्यूअर्स की वैक्सीन हेजिटेंसी मत रखिए, वैक्सीन लगवाइए और इन पेशेंट्स का बीमारियों के अगेंस्ट स्पेशल ध्यान रखिए। Thank you so much, sir, for bringing out that very, very valid point. I think the last 45 minutes have been quite what endearing. जितनी simply आपने टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर समझाया, काश के मेडिकल कॉलेज में भी इतने सिंपली लोग समझा पाते। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर ऑडियंस। मैं ये ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा कि परसों जो सर ने बताया वेंटिलेशन, क्या वेंटिलेटर होता क्या है, राइट? तो परसों हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र होंगे फ्रॉम आर्टेमिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जो कि इंटेंसिव केयर के हेड है वहां पे, जो कि आप लोगों को ये बताएंगे कि वेंटिलेटर आखिर में है क्या चीज, क्या है, और वो कैसे एक फेल्ड लंग को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, बाय।